everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the topic Hyderabad from our class 12 political science chapter 1 challenges of nation building. Now this is a very interesting topic because you get to know how the map of India that we see today has a long history far behind. So initially it was very different from what we see today, and it took a lot of sweat of our leaders. So today is a story that you are going to hear. Okay, consider it as a story so you will be able to understand it very easily. It gets confusing at first, but just keep listening and understanding what I say. Now Hyderabad, it was the largest of the princely states. Before moving on, let's get back to the history first. In the year 1947, India got independence from the British. Now this British India, its administration you need to understand. Like in British India, there was some part which was not under the direct control of British, but it was under the control of Indian rulers. The territory was within British India only, but that territory was ruled by the Indian rulers and not directly by the Britishers. Also it was under the suzerainty of the British crown. मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ टेरिटरी ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे. इंस्टेड वहाँ पे कोई इंडियन रूलर ही कंट्रोल कर रहा था. बट दैट इंडियन रूलर एक्सेप्टेड द सुजेरिनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो वो प्रिंसली स्टेट्स थे. नाउ व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो तब हमारे पास 543 प्रिंसली स्टेट्स थे. तो ब्रिटिशर्स दे गेव दीज प्रिंसली स्टेट्स 3 ऑप्शंस कि आइदर यू कैन जॉइन पाकिस्तान, और यू कैन जॉइन इंडिया, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट और बिकम इंडिपेंडेंट. तो जो ये थर्ड ऑप्शन था ना, ये बहुत ख़तरनाक ऑप्शन था. बिकॉज यू जस्ट इमेजिन कि इंडिया के बीच में से एक टेरिटरी है, कोई अलग ही कंट्री है, और इंडिया की जो मैप उसमें अलग अलग ऐसे होल्स बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के. तो हाउ ऑकवर्ड दैट मैप वुड लुक. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ इट वुड लुक एट द वर्ल्ड, बट खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में इट वुड कॉज वेरी डिफ़िकल्टी. सो इट वॉज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मर्ज दीज प्रिंसली स्टेट्स to the very country India. So Hyderabad, out of all these 543 princely states, was the largest of them. सबसे बड़ा था ये. And when you see it on the map, from all the sides, it was surrounded by the Indian territory. Okay. So when you look at the old Hyderabad and today's Hyderabad, they are different because the older one was very very large. And it consisted of parts of Maharashtra, Karnataka. So now if you look at this map, you get the estimate that how large was Hyderabad at that time. Although it's not the updated map, but just for your reference, it is there. It consisted parts of Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. Right? I hope you get a better understanding from this. So जो हैदराबाद का रूलर होता था उसको हम निज़ाम बोलते थे, and he was like one of the world's richest men. बहुत ज़्यादा पैसा होता था इनके पास. कि लेट मी गिव यू एन एस्टिमेट एग्जाम्पल ऑल्सो कि ड्यूरिंग दी इंडो पाक वॉर, जब इंडो पाकिस्तान की वॉर चल रही थी 1965 में, तो पाकिस्तान को तो सपोर्टर मिल चुका था, बट इंडिया इट वाज लाइक आस्किंग फॉर सम चैरिटी एंड ऑल राइट. तो उस टाइम पे हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने ऐसे डोनेट मतलब दिया था. उन्होंने 5000 kgs गोल्ड इंडिया को दिया था. सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट हाउ रिच ही वॉज. बट स्टिल जो है ना, दिस निज़ाम और द रूलर ऑफ हैदराबाद, उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था हैदराबाद के लिए. दैट मीन्स उनको खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी. अब क्यों ना बना पाए, उनके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी ज़मीन है. तो ही डेफिनेटली डिज़ायर्ड फॉर अ इंडिपेंडेंट स्टेटस. ठीक है. ऑल्सो बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लूज़ हिज पावर, इसीलिए उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था, नॉट टू जॉइन एनी कंट्री. एंड because of that
he entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947. तो हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, तो 1947 में ही नवंबर 1947 को इंडिया जो है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट एक होता है इंडिया के बीच में और हैदराबाद के बीच में देयर इज़ अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, क्योंकि हैदराबाद को देखो चाहिए क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंट स्टेटस, बट हमें इंडिया को हैदराबाद को इंक्लूड करना था, तो हैदराबाद वॉज अ बिट कन्फ्यूज, तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है उस पर साइन किया कि फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर हम सोचेंगे बट हम कोई वॉर नहीं करेंगे, ना ही इंडिया ना ही हैदराबाद कोई वॉर छेड़ेगा, बट वी आर गिविंग हैदराबाद द टाइम टू थिंक, एंड उस टाइम पे जो भी नेगोशिएशंस या डिस्कशंस हो रहे थे वो चल रहे थे ड्यूरिंग दिस 1 ईयर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद हैदराबाद। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमारा किसके साथ होता है, तो हैदराबाद के साथ होता है, और इसमें क्या होता है वो भी चीज़ हमें समझ आ चुकी है। तो वाइल दिस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वॉज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, अभी भी जो हैदराबाद है वो इंडिया का पार्ट नहीं हुआ है और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अभी भी ये चल रहा है। तो इन द मीन टाइम क्या होता है कि हैदराबाद जो स्टेट होता है उसमें से देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ द पीपल, तो लोग एक प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देते हैं किसके अगेंस्ट निज़ाम रूल, यानी कि हैदराबाद के रूलर के अगेंस्ट ही लोग जो है एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं एंड दे गैदर्ड फोर्स। सो बेसिकली जो पीजेंट्री थी इन द तेलंगाना रीजन, तो क्या है जो हैदराबाद का जो तेलंगाना रीजन है वहाँ पर पीजेंट्री यानी कि पुअर फार्मर्स, तो वो लोग जो है ये स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज़ उनको क्या लगता है कि जो निज़ाम का रूल है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, एक्सप्लॉयटेटिव है और ऑप्रेसिव रूल है। तो इसके अगेंस्ट ही, इस ऑप्रेसिव रूल के अगेंस्ट ही जो पीजेंट्री होती है, जो पुअर फार्मर्स होते हैं तेलंगाना रीजन में, वो उठते हैं एंड दे स्टार्ट अ प्रोटेस्ट एंड अ मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल, ठीक है, निज़ाम्स के रूल पर। इवन द वुमेन जॉइंड देम, क्योंकि विमेन भी इस मूवमेंट का पार्ट थी इन वेरी लार्ज नंबर्स बिकॉज दे वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस ऑपरेशन, सो इवन विमेन जॉइंस द पीजेंट्री मूवमेंट। तो हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी मार्क्ड फॉर MCQ पर्पस। तो हैदराबाद जो टाउन होता है वो एक मेन सेंटर बन जाता है कि यहाँ से जो है हमारी मूवमेंट्स कंट्रोल की जा रही है, ये एक सेंटर होगा पूरी एक्टिविटीज़ का, तो हैदराबाद वो नर्व सेंटर हो जाता है इस मूवमेंट का। द कम्युनिस्ट, सो कम्युनिस्ट आर द पीपल हु वांटेड इक्वालिटी एंड दे डिड नॉट वांटेड एनी रूल ऑफ किंग। तो ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं और ये जो हैदराबाद की कांग्रेस है ये एकदम आगे थी इस मूवमेंट के, दे वर लीडिंग आउट दिस मूवमेंट। और जब ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा था तो इसमें निज़ाम का क्या रोल होगा, निज़ाम ने इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया, तो वो क्या करते हैं, वो पैरा मिलिट्री फोर्स जिनको हम रज़ाकर्स बोलते हैं, तो रज़ाकर्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस होती है विच इज़ एन अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द द नॉन मिलिट्री एंड दीज आर वेरी लॉयल टू द निज़ाम। तो वो इन रज़ाकार्स को ये रज़ाकार्स जो है ये पीपल के फोर्स पर जाते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये जो है पूरा मूवमेंट कम्युनल नेचर का भी हो चुका था, दैट मीन्स रिलीजियसली भी बात की जा रही थी यहाँ पे, क्योंकि निज़ाम जो है ही वॉज अ मुस्लिम मोनार्क, तो उनका जो टारगेट था वो नॉन मुस्लिम्स के अलावा भी था, दैट मीन्स हिंदू पीपल भी थे, बाकी रिलीजन्स के लोग भी थे। तो इसका जो है डेफिनेटली इस मूवमेंट का एक कम्युनल नेचर भी हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो इतना ज़्यादा जो है ये जो फाइट है ये बढ़ती जा रही थी। दे मर्डर्ड, मेम्ड, इंजर्ड, ठीक है, उन्होंने लोगों को मारा, लोगों को इंजर किया, रेप किया, लोगों के घरों में जाकर उनका जो है सामान लूटा, एंड दे टारगेटेड पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जो टारगेट किया गया था नॉन मुस्लिम्स को, मतलब कि वो मुस्लिम्स के अलावा जो अलग रिलीजन था जैसे हिंदू, उनको टारगेट कर रहे थे, इसलिए वो क्या हो गया था, कम्युनल नेचर का हो गया था। तो जब इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाएगा तो क्या हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठेगी, नहीं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी दे हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इंडिया की वो आर्मी को बुलाती है टू कीप अप विद द सिचुएशन, एंड फाइनली इन सितंबर 1948 क्या होता है, इंडियन आर्मी जो होती है वो दे वर एबल टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस, और ऐसे इंटरमिटेंट फाइटिंग चलती रहती है, मतलब कभी फाइट हो रही है किसी साइड से, कभी नहीं हो रही। तो कुछ दिनों के बाद अल्टीमेटली हैदराबाद का फॉर्मली हमारा एक्सेशन हो जाता है टू इंडिया, दैट मीन्स फाइनली हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है।
नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ऑपरेशन पोलो क्या है एंड वाई इज़ इट रिटन हियर। तो ऑपरेशन पोलो कुछ नहीं, जस्ट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को ऑर्डर करती है टू टैकल द सिचुएशन, तो वो जो आर्मी का एक्शन होता है और ये जो पूरा चीज़ होती है इसी को ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम पुलिस एक्शन भी है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी of how Hyderabad joined India and now let's just quickly revise it। ये वो छोटा सा डायग्राम है जो मैंने बनाया है which summarizes the whole story of how Hyderabad joined India and don't just go on the pictures but go on the feelings, okay। तो जो निज़ाम होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, he do not want to join India। पर क्या होता है, निज़ाम की ऑप्रेसिव, क्रूअल, हार्श और एक्सप्लॉयटेटिव रूल की वजह से जो पीजेंट्री होती है, पुअर फार्मर्स होते हैं, विमेन होती हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जिनकी वजह से ये फ़ाइट जो है वो कम्यूनल भी हो जाता है। जब ये अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और जो कम्युनिस्ट्स होते हैं और जो हैदराबाद की कांग्रेस होती है वो फोर फ्रंट में आती है, तो निज़ाम उनको रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग रज़ाकार, जो कि दिस वॉज द अनऑफिशियल आर्मी दैट वाज वेरी लॉयल टू द निज़ाम। तो वो रज़ाकार को ऑर्डर करता है कि ये जो इनकी प्रोटेस्ट है उन्हें क्रश करो, ठीक है। लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट चुप बैठेगी? नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो इस पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आर्मी को भेजती है, जिसको हम ऑपरेशन पोलो भी बोलते हैं। एंड फाइनली व्हेन इंडिया विंस, तो हैदराबाद का जो है एक्सेशन हो जाता है, हैदराबाद फॉर्मली इंडिया को ज्वाइन कर लेता है एंड एवरीवन गेट्स हैप्पी, क्योंकि लोगों को तो निज़ाम के रूल से वैसे भी छूटना था। एंड दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के रूलर होते हैं निज़ाम, ही डिड नॉट वांटेड टू जॉइन इंडिया, तो पीपल स्टार्टेड राइजिंग अप अगेंस्ट हिज ऑप्रेसिव रूल, स्पेशली इन द तेलंगाना रीजन। वहाँ पे निज़ाम सेंट अ वायलेंट ग्रुप, जिनको रज़ाकर्स बोला गया, टू क्रश देम। लेकिन व्हेन थिंग्स बिकम मोर ब्रूटल एंड वायलेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजती है इन सितंबर 1948 अंडर द ऑपरेशन पोलो, एंड इन अ फ्यू डेज आफ्टर इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर्स एंड द हैदराबाद बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया।